Let's talk now about this display of delusion from the Congress party. Another one, a party that seems to have lost all sense of history and decency. Just days after elevating the Gandhi family to the status of gods. You remember what D.K. Shivkumar had said? They are Bhagwanta, I am Bhakta. Congress has now plumbed new depths of absurdity. They dare to compare Rahul Gandhi to father of our nation, Mahatma Gandhi, and liken his so-called voter Adhikar Yatra to our freedom struggle. This is the Azadi fight for Congress party. It's an insult to every Indian who holds the Mahatma's legacy dear. Viewers, Mahatma Gandhi fought the might of British tyranny, a colonial power that crushed our people under its boot. And what is Rahul Gandhi doing? Rahul Gandhi is maligning a democratically elected government, a government chosen by the will of the people. Mahatma Gandhi wielded the weapons of truth and non-violence, leading a movement rooted in moral courage. But Rahul Gandhi has been caught peddling lies, from endorsing Trump's fake narratives about India's economy being dead to spreading casteist slurs fabricated by foreign voices. Congress claims Rahul's Yatra is a fight for justice. But what do we see? A campaign of deceit, inciting division and vowing to fight the Indian state. Who said that? Rahul Gandhi. This is not a freedom struggle by any stretch, viewers. It's a desperate bid to undermine our democracy. And let's talk about language. Mahatma Gandhi spoke with dignity, uniting our country with words of wisdom and compassion. Congress leaders have stooped to abusive rants, hurling vile insults at Prime Minister Modi's mother and abusing the RSS. Where is the non-violence in this venom? Where is the truth in their vitriol? Viewers, this is not the Mahatma's path. And here's the most glaring truth of all. Mahatma Gandhi himself wanted the Congress party disbanded after independence. He said, shut shop, the purpose is achieved. He believed the purpose was fulfilled and that it should dissolve to serve the nation selflessly, not cling to power forever. So if the Congress truly believes Rahul Gandhi is like Mahatma Gandhi, does he have the courage to honor what Mahatma wanted, his vision? Will Rahul shut down the Congress party as the ultimate tribute to Mahatma? वोट अधिकार यात्रा अब एक नई क्रांति में तब्दील हो चुकी है। एक समय था जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में इस देश में एक बलबला आया और स्वतंत्रता संग्राम के इस युग ने अंग्रेज को जड़ से उखाड़कर फेंक दिया। वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में तेजस्वी यादव जी के सहयोग से आज वही कर रही है। निखिल, इसमें भी कोई वीडियो चलाना है? यस प्रणय, पिछली वीडियो चलाई थी उसमें फैक्ट चेक हो गए। आप ईटा जहां पे वो पोलिंग हुआ था वहां रीपोलिंग हो गया, गूगल कर लीजिए। अब आप इसका जवाब दीजिए। इलेक्शन कमीशन ने क्या एक्शन लिया? रीपोलिंग करवा दिया। अब क्या इलेक्शन कमीशन कांट, 1 minute, कांट ओपन फायर ऑन पीपल, इट कांट। रीपोलिंग करवा दिया, गूगल कर लीजिए और fact check me even after the show you can, Nikhil. Now answer the question. Look, don't waste time, please. Is Rahul Gandhi like Mahatma Gandhi? When you keep on lying in your package, you say Congress leaders have been abusing the Prime Minister's mother. Show the video of one Congress leader or one Congress office bearer abusing the Prime Minister's mother. But I can show you the video of the Prime Minister abusing Rahul Gandhi's mother, calling her Nikhil, is Rahul Gandhi Mahatma Gandhi? Answer that question, please. Do you see Mahatma Gandhi in Rahul Gandhi? The Prime Minister calling Shashi Tharoor's deceased wife 50 crore ki girlfriend. And let's talk on this issue of what Mahatma Gandhi did and what Rahul Gandhi did. Mahatma Gandhi fought against the British who were trying to divide us on communal lines. He fought for freedoms, he fought for the rights of Indians. And what Rahul Gandhi is doing is pretty much the same. Mahatma Gandhi was faced with a colonial administration which would put anybody in jail just because they spoke against the government, and Rahul Gandhi is facing quite the same thing. Is Rahul Gandhi in jail? Membership of the parliament. Nikhil, is Rahul Gandhi in jail? Has he been jailed? Rahul Gandhi, is he in jail, Nikhil? What kind of tyrannical government is this that is allowing the other side to abuse and ridicule
without any punitive action? No. We thankfully that we did have a Congress government for the first 40, 50 years Yeah, of the country. thankfully the Congress government that you had imposed emergency. Thankfully. विवेक श्रीवास्तव जी, राहुल गांधी में महात्मा गांधी आपको भी नजर आ रहा है? नहीं, अगर राहुल गांधी महात्मा गांधी को फॉलो करके चलना चाहते हैं, दे आर टू डिफरेंट ह्यूमन बीइंग्स इन टू डिफरेंट टाइम स्लॉट्स, राइट? So, I mean, if Mr. Rahul Gandhi wants to follow the Mahatma, what is wrong in it? Let him try. And he should try. And his party men are trying to endorse it and cheer him for it. What's wrong in it? Why are you so jealous? I am not jealous, sir. आज डॉक्टर जोशी वो बोलेंगे राहुल गांधी में उनको चोर दिखता है. वो बोल चुके हैं उनके नेता केजरीवाल. वो बोल रहे राहुल गांधी को जेल में होना चाहिए नेशनल हेराल्ड केस में. आपको महात्मा गांधी नजर आ रहा है? डॉक्टर जोशी, अरविंद केजरीवाल जी क्यों इंसल्ट कर रहे हैं महात्मा गांधी का? क्योंकि राहुल गांधी तो महात्मा गांधी हैं. देखिए, there is no comparison. You know, this is a worker speaking in favor of his leader, and that's that. गांधी जी जो थे वो एक ही थे, राष्ट्रपिता थे. World over, you know, wherever you go, whether you go to UK, whether you go to South Africa, you will find, you know, he has inspired scores of people, scores of movement, dozens of people like Dr. King, Nelson Mandela, and you know, you name the persons. So Gandhi ji cannot be compared with Rahul Gandhi. Rahul Gandhi is an entirely different person, and Mahatma Gandhi was an entirely different person. I see this as an example of Atma Mugdata and nothing else. You know, hard to compare. ऐसा मत बोलिए सर, आप दिल तोड़ देंगे निखिल जैन और विवेक श्रीवास्तव का. इनको तो इंस्पायर डेफिनेटली किया है. शहजाद, आप लोग क्यों नहीं इंस्पिरेशन ले रहे? First of all, Mr. Pranesh, when they can compare convicted Lalu to Bhagat Singh, why can't they compare Rahul Gandhi, who has stolen, or his family has stolen the surname of Mahatma Gandhi and is misusing it from ever since? But I will draw some parallels between Mahatma Gandhi and Rahul Gandhi. महात्मा गांधी के 3 बंदर थे, हर्षवर्धन जी. बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो. राहुल गांधी के भी 3 बंदर है. सच मत बोलो, सच मत देखो, सच मत सुनो. इसलिए अभी एटम बॉम्ब के बाद हाइड्रोजन बॉम्ब पे आए. हाइड्रोजन बॉम्ब में भी क्या निकलेगा आप जानते हैं. दूसरी बात, महात्मा गांधी जी के हथियार थे सत्य और अहिंसा. ये सत्य तो नहीं, पर ये झूठ के हथियार का इस्तेमाल करते हैं. अहिंसा का तो नहीं, परंतु गाली गलौज का करते. 150 गालियां दी. अभी निखिल जी की बातों पे आते. अभी वीडियो दिखाना है या बता दूं? राज बब्बर ने बोला कि रुपया जो है वो मोदी जी की माता जी की उम्र पहुंच गया है. ये प्रशंसा है उनकी माता जी की, तो बता दीजिए. फिर पवन खेड़ा ने बोला नरेंद्र दामोदर दास मोदी नहीं है, ये नरेंद्र गौतम दास. मैं निखिल जी आपके फादर का नाम चेंज करूंगा या मेरे फादर का नाम चेंज होगा तो व्हाट विल यू फील? हिटलर, गंगू तेली, कुत्ते की मौत मरेगा, कब्र खुदेगी, नीच, भस्मासुर, बिकॉज ही कम्स फ्रॉम ओबीसी फैमिली. मोदी समाज चोर है. हिटलर की मौत मरेगा, दिस हैज बीन सेड बाय सुबोध कांसा है. इसके आगे सुनाऊं क्या या वीडियो दिखाऊं आपको? आखिरी बात देखिए, ऐसा है कि देखिए, महात्मा गांधी जी राम जी के अस्तित्व पर सवाल नहीं खड़े किए, सोनिया गांधी एंड फैमिली ने किया. महात्मा गांधी जी तो गौ रक्षा की बात करते थे. क्या व्यू है इन लोगों का? बीफ पार्टी करते हैं केरल में. और लास्टली जो है, महात्मा गांधी जी ने बोला था कि कांग्रेस नाम की दुकान बंद कर दीजिए. चलिए, आप महात्मा गांधी से प्रेरित है ना विवेक जी, कब बंद कर रहे कांग्रेस का ठेका? आई मीन दुकान, ठेका इन द सेंस दी आउटलेट फ्रेंचाइजी, वरना आप कुछ और समझ लेंगे. ठीक है, अब आप सुनिए. अब आप सुन लीजिए. अब आप सुनिए पहले, ठीक है? आपने बहुत सारी गालियां सुनाई और यहां पे तो साहब फैशन हो गया है. एंकर साहब आपकी तरफ, और हम लोगों को तो बोलने नहीं दे रहा था. पिछली डिबेट में 30 सेकंड बुलवाया श्रीमान जी ने, उसके बाद फीडर डाउन कर देंगे कि मेरी आवाज ही ना सुनाई पड़े. ठीक है, तो इस डर के माहौल को फांसीवाद कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ये जो पैकेज चलाते हैं प्रणेश जी, जिसमें सिर्फ राहुल की बैटिंग होती है और यहां बीजेपी के 2 एंकर बैठते हैं, एक शहजाद पूनावाला, दूसरा प्रणेश राव. इसको पत्रकारिता कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? पत्रकारिता. ये आदमी रोज सिर्फ राहुल गांधी के खिलाफ बोलने के लिए एंकरिंग करने आता है. इसके अलावा इस व्यक्ति का की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है. ये है सच्चाई. एवरी डे ही विल कम. व्यूअर्स, राहुल गांधी ने ये कर दिया क्योंकि वो देश का, दुनिया का, पृथ्वी का सबसे बड़ा दुश्मन है. मैं प्रणेश रॉय आज उसके खिलाफ आपको कुछ तथ्य देने जा रहा हूं. शट अप निखिल, यू आर नॉट सपोज्ड टू स्पीक. शहजाद भाई बोलो 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 बोलो. तो ये क्या है बॉस? क्या है? कौन सी गालियां? सोनिया गांधी को बार बार बोला, याद है कि मैं याद दिला दूं, कांग्रेस के नेता. ये देखिए आगे बीच में कांग्रेस
कांग्रेस के विधवा। हाँ, नवारो ने बिल्कुल ठीक बोला। नवारो ने बिल्कुल ठीक बोला सर, नवारो ने बिल्कुल ठीक बोला। कल भी चाइना और पाकिस्तान साथ बैठेंगे। अभी जश्न मना लो। 45 मिनट कार में बैठे, कोई टेबल चेयर नहीं मिला, कमरा नहीं मिला। 45 मिनट प्राइम मिनिस्टर साहब विद पुतिन, पता नहीं क्या होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है भाई। कोई कमरा नहीं मिला, कोई वहां पे था नहीं, क्या बात थी, क्या हुआ, कौन। हर्षवर्धन जी देखिए, ये मुझे एंकर को बुरा भला बोल रहे हैं और ना इनका फेडर डाउन हुआ, सब लोगों ने सुना भी। विवेक श्रीवास्तव को गुस्सा इस बात का है कि मैंने इनसे एक बार पूछ लिया था कि आप मैथ्स में कितने अच्छे हैं, तो इन्होंने बोला कि मैं बहुत अच्छा हूं। तो मैंने बोला 11,1111 लिख के दिखाइए, और इनसे वो हुआ नहीं, और वो क्लिप वो वायरल हो गई। अब ये कहीं भी जाते हैं पॉडकास्ट में, वो लोग वो क्लिप चला देते हैं। तो अब ये क्या करेंगे एम्बैरेसमेंट में, तो अभी आके मेरी नकल करते हैं मेरे शो में। हर्षवर्धन जी देखिए, और निखिल को मैंने कहा कि आप नवारो जैसे बात कर रहे हैं, तो विवेक श्रीवास्तव को लगा देखिए मुझ में भी नवारो वाली क्वालिटी है, तो मैं डिस्प्ले कर देता हूं। अब आप बताइए, राहुल गांधी में हर्षवर्धन जी आपको दिख रहे हैं महात्मा गांधी? देखिए, उधारी के गांधी हो जाने से महात्मा गांधी कोई नहीं हो सकता है, सबसे पहले इसको समझिए। और महात्मा गांधी हो गए हैं राहुल गांधी, ये कहकर गांधी जी का अपमान करना बंद करना चाहिए। महात्मा गांधी सत्ता के पीछे नहीं भागे। महात्मा गांधी तो चल देते थे, एक कपड़े में लाठी उठाकर चल देते थे और देश उनके पीछे खड़ा हो जाता। और राहुल गांधी पीपीटी बनाकर भी दिन रात झूठ बोल रहे हैं, फिर भी देश उनके पीछे नहीं खड़ा हो रहा है। अब वो एटम बम और हाइड्रोजन बम छोड़ेंगे, कमाल है। और जो महात्मा गांधी ने कहा था वो तो हो चुका है। कांग्रेस अब नहीं है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा थी वो नहीं है। कितनी बार ये पार्टी टूटी है, ये जितने लोग इस डिबेट में है सबको पता है। और अभी जो कांग्रेस आई है, ये कहां से आई है ये भी कोई बताने की जरूरत नहीं है। पूरी की पूरी पार्टी तोड़कर परिवार में चले गए। तो सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी किसी भी तरह से कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो फ्रीडम फाइटर वाली कांग्रेस थी, इसको समझिए आप। और इस देश में यह भी प्रोपेगेंडा फैलाया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने बड़ी स्पष्टता से बताया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस सभी की थी, और उसी धारा से निकलकर सब लोग निकले, जितने राजनीतिक दल हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कांग्रेसी थे, यहां तक कि संघ के जो संस्थापक थे डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार, वो कांग्रेसी थे। सवाल यहां यह है कि क्या उस आंदोलन को हाईजैक कर लिया गया? क्या स्वतंत्रता आंदोलन को जिस तरह से देश को देखना चाहिए था, वो एक परिवार में विलीन कर दिया गया, उसको सत्ता मिलती रहे? मुझे लगता है कि देश के लोगों को यह सोचना चाहिए। और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी जहां पहुंच गई है, राहुल गांधी उसको उसी दिशा में ले जा रहे हैं जो गांधी जी ने आशंका जताई थी। विवेक श्रीवास्तव जी, अरविंद केजरीवाल तो बीजेपी से नहीं है। चलिए, आपने बोला एंकर ये बोलता है राहुल गांधी के बारे में ऐसा वैसा, पूरा करके दिखाया आपने। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी को जेल में होना चाहिए। हाँ, वो ठीक है, उनकी अपनी एक पॉलिटिकल राइवलरी कुछ राज्यों में है, लेकिन आपके लिए एडवाइस है, कृपा करके फीडर ना डाउन करें। आप अच्छे एंकर हैं, फीडर सबका ऑन रख के डिबेट को कंट्रोल करने के गट्स रखिए थोड़े। ये बार बार वॉल्यूम डाउन और मैं ही बोलूंगा और यही बोलेगा। और श्रीवास्तव जी, जब आप बोलते हैं तो बाकी सबका फेडर डाउन होता है, ये आपको जब आप बोलते हैं विवेक श्रीवास्तव जी, तब बाकी सबका फेडर डाउन होता है, उस पर क्यों नहीं कंप्लेन करते हैं आप? ये तो वही वोट चोरी वाली एलिगेशन है कि हम जहां हार गए वहां फेडर डाउन। एक मिनट, अगर फेडर डाउन नहीं करेंगे तो क्या आप यू विल टॉक सेंस? कोई गारंटी है? कोई गारंटी है? नहीं है ना। अभी आपने जो बोला, वो जब वो ट्वीट होगा तो सुन लीजिएगा। आपने जो भी कहा मेरे बारे में वो सब सुना है लोगों ने, कोई मैंने फेडर डाउन नहीं किया। आपका जो ये नवारो जैसा रैंट था, जो भी आपने बोला करके दिखाया, वो सब वैसे ही दिखेगा आपको एज इट इज। अब आप पता नहीं मुझ में क्या देख रहे हैं, राहुल गांधी में ही आप महात्मा गांधी देखिए। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। लाइक हर्षवर्धन जी सेड, द रेट एट विच कांग्रेस पार्टी इज गोइंग, you know, it is not improbable. Just one line. Okay. The leftists and the communists were the biggest opponents of Mahatma Gandhi's freedom movement, by the way. They are acting funny here. Okay, we've run out of time. विवेक श्रीवास्तव जी, देख लीजिएगा क्लिप, आपने जो बोला वही आपको सुनाई देगा। नेक्स्ट टाइम निखिल, check the facts on ETA. There was a repolling conducted by the election commission. एक और वीडियो नेक्स्ट टाइम, look for another video.
and come, better prepared. Viewers, thanks for watching. The news are on the other side.